हाँ जी बेटे सो लास्ट क्लास ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਤੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ तो ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2019 ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਏਰੀਆ ਐਟਸੈਟਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਔਰ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ f1 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ f2 ਤੇ f3 ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ if gx is a function satisfying this equation so gx ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ f2 of j of f1x ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ f3 ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ f1 ਪਤਾ ਹੈ f1 ਕਿੰਨਾ 1/x ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੋ f2 of j of 1/x ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f3 ਹੁਣ f2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ j of 1/x ਸੋ f2 ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ this ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ that will be equal to 1 minus j of 1/x is equal to f3x what is f3x 1 upon 1 minus x ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ j of 1/x ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ jx ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਸੋ j of 1/x is ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ 1 minus 1 by 1 minus x that is equal to 1 minus x minus 1 by 1 minus x therefore j of 1 by x is ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲਿਓ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ jx ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/x ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ jx ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/x ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ jx ਆ ਜਾਏਗਾ therefore j of x is x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/x ਸਮਝੇ ਗੱਲ 1/x ਰੱਖਾਂਗੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ 1/x upon 1/x minus 1 that is equal to ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/x upon 1 minus x by x so therefore jx ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ that is 1 upon 1 minus x ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 upon 1 minus x f3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ that is equal to f of 3 ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ तो ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ 19 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ h of f of gx ठीक है इज इक्वल टू 5x एक फंक्शन है 5x ठीक है तो ਤੁਹਾਨੂੰ f भी पता है g भी पता है तो h भी पता है तो फाई ऑफ समथिंग लभना है तो पहला की करिए आप फंक्शन लभ लो ठीक है f of gx कितना होएगा f of gx इज इक्वल टू इत्थे x ਦੇ ਅੰਦਰ g ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ gx that is ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 10x ਇਹ ਅਸੀਂ f of g ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ h ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ h ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਬੇਟੇ f of g मतलब आ सो ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ therefore h of f of gx equals to ਹਾਂਜੀ 1 minus ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 10x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 10x ਨੀਚੇ 1 plus 10x ਔਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10x ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ tan pi/4 minus 10x upon 1 plus tan pi/4 into 10x so tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b so किसके बराबर आ गया tan of pi/4 minus x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ 5x ਕਿਹਾ ਹੈ ठीक है अच्छा हुण की चाहुंदा है 5 pi/3 ਤੇ 5 of pi/3 ਕੱਢ ਲਓ that is tan of pi/4 minus pi/3 समझ आ रही गल पुत्र बस almost there हाँ जी कितना आ गया tan of हाँ जी minus pi/12 और minus tan pi/12 तो आ थोड़ा आंसर आ गया हुण चेक करो कि यही आंसर है क्योंकि tan के अंदर तो होर बड़े सारे एंगल हो सकते हैं जिन्हों की वैल्यू आ हो फिर मैच करा लांगे सो आंसर साडा की चाहिए minus tan pi/12 ठीक है इनू हुण मैं रब कर दिंदा so we want this as answer let's see
11 pi by 12 है, so 11 pi by 12 is pi minus pi by 12, and tan pi minus theta second quadrant minus tan theta, that is minus tan of theta. So आप बिल्कुल बराबर है, so therefore D साडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो let us move forward। ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਟਿਲ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ fx is equal to a minus x raised पर n, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ f of f ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦਾ x ਜਾਂ 1 by x ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, f of f ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, f ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ fx ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ f of fx is equal to a minus fx ਦੀ ਪਾਵਰ n raised to power 1 by n। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, fx ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ raised to power n ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ raised to power n ਕਰ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ raised to power n, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ n ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ fx raised to power n ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, a minus this value is this, ब्रैकेट पानी है a minus x raised पर n raised पर 1 by n। सो कितना आ गया, कट्टा जाऊगा a ना a, सो इतने प्लस आ जाऊगा x raised पर n raised पर 1 by n, दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, समझे गल बेटे। सो वन ऑफ द वैल्यूज यदि आ गई, ये आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद कहना जी fx पता है, then for what value of alpha f of fx is equal to x। तो अगेन पहला आप f of fx कर ली। सो f of fx इधर जिथे जिथे x है उत्थे उत्थे fx पुट कर दो। अल्फा fx अपॉन fx प्लस 1 किहदे बराबर है बेटे, ये x दे। हुण आपां की करना है, दो तरीके, या तो मैं पुट चेक करा के भी कर सकदा या मैं सॉल्व कर ला। तो इहदे लई की करिए कि आपां let us solve, और मोर ओवर fx पता है, इतने पुट कर दो, इतने हुण इतने मैं fx की वैल्यू कर दांगा। तो कितना आ गया, अल्फा x अपॉन, ठीक है, हुण मैं पुट चेक करा सकदा, इज इक्वल टू x टाइम्स आ वाली सारी टर्म इधर ले जानी ब्रैकेट दे नाल, अल्फा x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर x नीचे एलसीएम, इधरों भी कट्टिया जाऊगा। सो कितना आ गया, x टाइम्स अल्फा x प्लस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, नॉन जीरो। हुण की आ गया, अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू, हाँ जी, अल्फा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो एवें ना करा मैं कट्ठा ही कोफिशिएंट लिखता है। सो x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस अल्फा प्लस x। अच्छा, हुण कहंदा जी किहड़ी अल्फा की वैल्यू रही, क्या हमेशा ये बराबर होवे। सो आ साइड हमेशा ये बराबर, सो आ भी एक पॉलीनोमियल है ना, तो इनू क्वाड्रेटिक है तो इनू लिख लो 0x स्क्वायर। सो मोर ओवर फॉर एवरी x, ठीक है, तो हुण अगे लिखते हैं पुत्र, एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाऊगा, पहले इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर लिए 1x प्लस अल्फा प्लस 1x स्क्वायर। अच्छा, हुण देखो वो कहंदा जी आ हमेशा किहड़ी अल्फा की वैल्यू होवे, दोनों साइड हमेशा बराबर होण। अच्छा, लैफ्ट हैंड साइड एक लीनियर है, इसका मतलब की होएगा कि आ जिहड़ा कोफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर वो 1 के बराबर होवे। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड ते एक्स स्क्वायर की टर्म है, लैफ्ट ते नहीं है, इसका मतलब आ वाला कोफिशिएंट 0 होवे। ठीक है, तो अगर आ हुंदा है तो हमेशा ही आ 0 होना फॉर एवरी एक्स, ये दोनों बराबर आ जानी है। सो किहड़ी वैल्यू दोनों को सैटिस्फाई करती है, अल्फा इक्वल टू -1। इतों -1 आएगा, इतों +1 -1, बट कॉमन आ वाली वैल्यू है, मतलब अल्फा की वैल्यू -1 पुट करोगे, लैफ्ट साइड हमेशा फॉर एवरी एक्स राइट साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला करते हैं जी। ये हुण तुहाडी पुरानी नॉलेज जिहड़ी तुसीं ग्राफ वगैरह पढ़े है ना, वो भी वरती जानी है। कहना जी fx का फंक्शन है, gx है, then g of fx, so g of
एफ एक्स कढ़ लीए पहला। सो कितना आएगा जी के अंदर इत्थे एफ एक्स पुट कर दो, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द स्क्वायर माइनस 1 दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ जी, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 एंड यू नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है। सो 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। सो बिल्कुल इनू अगर मैं एच एक्स मान ला, सो मेरे को एच एक्स आ गया साइन 2x। चलो हम अगे पढ़ते हैं। दिस इज इनवर्टेबल इन द डोमेन। इनवर्टेबल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ। तो की करिए साइन 2x का रफ जिहा फटाफट ग्राफ बना लीए। तो कितना होएगा कि अगर साइन एक्स हुंदा तो पूरा कितना जाना सी ये, हाँ जी, 0 तो लैके हाँ जी 2π तक पूरा, बट 2 नाल मल्टीप्लाई करन दे नाल एक्स का की होएगा कि ग्राफ कंप्रैस हो जाएगा। सो जिहड़ी वैल्यू 2π ते मुकनी सी वो पाई ते मुकेगी, ठीक है। सो अदरवाइज साइन एक्स की होना सी, होना सी 0 π 2π। हुण हर एक पॉइंट नू हाफ हाफ कर दो, आ हो जाएगा पाई, आ हो जाएगा π/2, देयरफॉर आ हो जाएगा π/4, आ 0, आ माइनस π/4 माइनस π/2। आ तुहाडा साइन 2x का ग्राफ बन गया। एंड क्लीयरली वी कैन सी कि माइनस π/4 तो लैके π/4 तक आ जिहड़ी ब्रांच है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन इनवर्टेबल है, मतलब वो कली ब्रांच नहीं है, ये भी है, ठीक है। बट ऑप्शन च सानू आ दिता है, ठीक है। आ साडा आंसर हो गया। तुसीं पहला देखो 0 to π/2, 0 to π/2 इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज इत्थे भी नहीं। माइनस π/2 तो बड़ी बार डिक्रीज इंक्रीज कर रहा तो नहीं है, 0 to π ते नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जिमें जिमें ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਗਾਂ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਨੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ। अच्छा जी, आ कहते एडवांस का क्वेश्चन है वाला। इंटीग्रेशन तो आप सर्टनली नहीं ध्यान रवांगे, आप सिर्फ इतने रहने। कहता एफ एक्स इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज पर एन दी पावर 1/n। सो मैं एक आर्टिकल कराया सी लास्ट आइटरेशन, मतलब जिहदे एफ ऑफ एफ एन टाइम होवे, तो मैं की दस्सिया सी स्टार्ट करो तुसीं एफ ऑफ एफ तो, ठीक है। फिर देखांगे 2 बार 3 बार कि की पैटर्न बनता है, की सीरीज बनती, ठीक है। तो ये थोड़ा एफ एक्स है। सो आप बिगिन करते हैं एफ ऑफ एफ तो। सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, इत्थे इत्थे एक्स की जगह एफ एक्स रख दी अपॉन 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर एन दिस होल स्टफ रेज टू पावर 1/n। अच्छा हुण की करना, आप इत्थे वैल्यू पुट करनी एफ एक्स की, वो तो आही है 1 प्लस एक्स रेज पर एन डिवाइड बाय 1 प्लस एफ एक्स की पावर एन, इनू रेज टू पावर एन कर दो, कितना आएगा, एदी भी पावर आ जाएगी एन डिवाइड बाय एदी भी एन, तो आ कटिया जाऊगा, ये आ गया थोड़े, ठीक है। आ वैल्यू आ गई इदी, तो इतने पुट कर दो 1 प्लस एक्स रेज पर एन बाय 1 प्लस एक्स रेज पर एन ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 1/n, ठीक है। वंस अगेन आ वाली वैल्यू एफ एक्स की रखती है इतने आ वाला, और 1 प्लस आ एफ एक्स की पावर एन दी, ठीक है। हुण की करिए, आप इनू सिंपलीफाई करते हैं, अलजैब्रिकली एलसीएम लैंने हैं। डिनोमीनेटर, हाँ जी, इत्थे आऊगा आ वाला इधर, तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स रेज पर एन है ना, नाल प्लस एक्स रेज पर एन पिया होर, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 एक्स रेज पर एन डिवाइड बाय, ठीक है, आ वाला नंबर 1 प्लस एक्स रेज पर एन, हाँ जी, पावर कितनी है दी 1/n, एदी भी 1/n थे एदी भी 1/n, ठीक है। डिवीजन है अलग अलग करती, तो ऊपर कितना एक्स बाय 1 प्लस एक्स रेज पर एन, और ये सर्टनली एलसीएम जिहड़ा आ वाला कटिया जाऊगा। सो साडे कोल आ गया ऊपर एक्स, नीचे 1 प्लस 2 एक्स की पावर एन की पावर 1/n। तो व्हाट हैपन्स, एक बार एफ सीगा ते आ खानी है, 2 बार होया ते इत्थे 1 सी पहला, इत्थे हुण आ गया 2। ऐदां ही तुसीं एक बार फिर जे तसल्ली करना चाहुंदे हो, तुसीं थर्ड करोगे, फिर इत्थे 3 आ जाऊगा, ठीक है, समझे गल। सो ये तुहाडा 2 बार करया ते आ गया। चलो मैं एक बार होर कर दिंदा, फिर दैन वी कैन जनरलाइज, हालांकि आइडिया तो लग ही गया।
दिस इज एफ ऑफ एफ, ठीक है। सो 3 बार की होएगा एफ ऑफ एफ, ठीक है। थोड़ी स्पीड पढ़िए। तो हुण 3 बार ਲਈ एफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ एफ ਦੇ ਅੰਦਰ x ਆ, ਇੱਥੇ सर्कल जड़ा किया उत्थे की रख देना आ वाला 2 बार वाला। सो कितना आएगा, इत्थे पूरा छाप दो x अपॉन, ठीक है, 1 + 2 x रेस्ट पर n रेस्ट पर 1/n, ठीक है। इत्थे रखा गया 1 प्लस इत्थे, हाँ जी 2 बार वाला रेस्ट पर करना n, यदि रेस्ट पर n करो, कितना आएगा x रेस्ट पर n एंड 1 + 2 x रेस्ट पर n से यदि वैल्यू ब्रैकेट रेस्ट पर 1/n, ठीक है पुत्र। सो बस गल खत्म। फिर एलसीएम लोगे, इत्थे आएगा 1 + 2, इत्थे +1, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, समझे गल। फिर 3 अगली बार, फिर 3 + 1 4 आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी x जड़ा इत्थे आ जाएगा 1 + 3x दी पावर n रेस्ट पर 1/n, एलसीएम कट्टा जाएगा। सो 3 बार a है, 4 बार a है, तो n टाइम्स कितना आ जाएगा, जो साडा gx है, gx विल बी, ठीक है, f of f n टाइम्स एंड दैट विल बी, हाँ जी, इत्थे 3 की जगह कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इट। बाकी फिर उन्हें इंटीग्रेशन च जो कराना है वो करा लेगा, आ जाएगा। दिस इज gx, ठीक है। ओके, अभी 11 एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल सिंगल चॉइस आएगा साहब। वो कहता जी f(x) इज x², ठीक है, तो gx इज sin x फॉर ऑल x, ठीक है। then the set of the value of satisfying this equation, you know, dangerous, but it's pretty simple। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ FOG, तो ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ G of F ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ G of F ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ G of F ਕੱਢ ਲਈ, ਗੌਫ ਕੱਢ ਲਓ, G ਦੇ ਅੰਦਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F ਪਾਤਾ, F ਕਿੰਨਾ ਹੈ x², so that is coming out to be sin of x², ठीक है। ये आ गया G of F। तो आ वाली जी इक्वेशन है, एक ही है f of g of this function, ठीक है, समझे गल, of g of f, क्लियर है। इधर g of, हाँ जी, वट g of f। चलो हम वंस अगेन की करिए, आ की कह रहा है, और एवें कर लो, इधरों f of g भी कर लो, मतलब इनू मैं एसोसीएट करके आ बना लिया, तो इनू एसोसीएट करके व्हाट इज f of g, f of g होगा पुत्र, फॉग की होगा, फॉग चल रहा है आजकल, FOG। सो f दे अंदर जिथे ते x है उत्थे उत्थे g रख दो, सो दैट इज sin x दा होल स्क्वायर। सो आ वाला आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। उहदे अंदर की रखना है आ वाला फंक्शन, और जिथे ते x है, सो मेरी गल इस फंक्शन के अंदर जिथे इत्थे x है उत्थे उत्थे आ रख देंगे। चलो आ लिख लीए, बाद च रख देंगे sin x², ठीक है, इज इक्वल टू जी किन्ना पुत्र, जी है तुहाडा sin x, सो sin x दे अंदर x दे की रखना है जी ओ एफ की है sin of x², बस ठीक है। हुण वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है, तो ये अंदर यदा मतलब है ऑफ, यदा मतलब जिथे जिथे x है पुत्र आ उहदे अंदर आज पूरा रख दो, जिथे ते x है उहदे अंदर आ पूरा फंक्शन रख देना, ठीक है। सो कितना आ गया sin स्क्वायर ऑफ x² इज इक्वल टू साइन ऑफ, हाँ जी, साइन ऑफ x², दैट्स इट। गल खत्म। हुण सोचिए, देखो दिस इज लाइक इक्वेशन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन ऑफ a, यहो जी इक्वेशन आ गई। इनू a अगर मान ली तो किवें सॉल्व करांगे, इनू लैफ्ट हैंड साइड ते ले जाओ, ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड ते ले जाके इधर राइट हैंड साइड ते इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। हुण मैं इनू सॉल्व करना, तो एक कॉमन आ गया साइन ऑफ साइन x² कॉमन, तो की बचेगा ब्रैकेट साइन ऑफ साइन x², हाँ जी, आ वाला -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर इधर साइन थीटा इज 0, ठीक है, और साइन थीटा इज 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा हुण आपां इनू सिर्फ सॉल्व करना रह गया ऑप्शनल हिसाब नाल, गल समझ आई, इन्ना नोट कर लो, फिर मैं इनू रब करदा, ठीक है। सो साइन ऑफ साइन x² की वैल्यू या 0 होएगी,
साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 होएगी। ठीक है, तो इत्थे चलो लिख लेने हुण। सो वी नीड टू सॉल्व साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, इत्थे एंगल का स्क्वायर है बेटे, इधर 0 और साइन ऑफ, हाँ जी चलो करते हैं, साइन थीटा 0, थीटा इज एन पाई, देयरफॉर आ साडा थीटा है, सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन की हुंदा इंटीजर। ठीक है, अच्छा हुण देखो, अगर एन दी मैं इंटीजर वैल्यू पुट करा तो राइट हैंड साइड की बनी, या 0 आएगी अगर 0 पुट कर दें, 1 पुट करांगे पाए, या -1 पुट करांगे प्लस पाए, +-2 पाए एंड सो ऑन। लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा आ, साइन जिहड़ा आ वो हमेशा 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करदा, तो पाए ते 3.14 है, तो आ ते कितना हो गया +3.14 -3.14 अप्रोक्सीमेटली, तो आ ते होर वध गया, तो इन्हां दे बराबर तो कभी भी नहीं होएगा गांगा। तो पॉसिबिलिटी की है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज साइन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गल समझ आई? आ क्यों छड्डिया? बिकॉज साइन ऑफ एनी एंगल थीटा that always lie between 1 and -1 including them, so these values are like certainly more than or lying outside this particular range, so a कट जाना, hence last है आही equation, so now sin theta is 0, फिर तो this theta is equal to n pi। ठीक है, let's take n or m whatever। ठीक है, so on therefore x की आ गया, where n is what, n is a integer। ठीक है, ਹੁਣ अगेन क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर n जिहड़ा होगा दैट विल बी लाइक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नेगेटिव लवांगे एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होएगा, देयरफॉर x आ जाएगा ±√n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ±n पाई, n बिलोंग टू दिस, ये आ गया, हाले आ भी सॉल्व करना बाकी। ठीक है बेटे, सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सो ये तो रे ये रही गल, हुण आपां गल करते हैं साइन इहदी। अच्छा 1 कद हुंदा है? 1 हुंदा पुत्तर, इफ यू गाइज रिमेंबर, 1 हुंदा इत्थे, एंड दैट इज वट, हाँ जी 4n + 1 इंटू π/2, या एवें नहीं याद तो एवें याद करा दा, साइन कितने कितने 1 हुंदा, पहला एंगल किहड़ा है π/2 आ वाला। ठीक है, सो एक एंगल पता लग गया, दूजा आ वाला बिल्कुल 2 पाई के बाद आएगा, सो उस 2n पाई ऐड कर दो, तो कितना आएगा 4n + 1 इंटू π/2, आ वाले एंगल होंगे। ठीक है, सो साइन थीटा इज 1 π/2 5 π/2 इन्हां ते, सो देयरफॉर साइन थीटा इज 1, दिस थीटा इज, हाँ जी 4n + 1 इंटू π/2, वेयर n इज वट, इंटीजर। अच्छा एन दियां इंटीजर वैल्यू पुट करो, अगर घट्टो घट्ट ते लाइक 0 पुट कर दें, मतलब मैगनीट्यूड वाइज 0 पुट करांगे, आंसर कितना आ गया π/2। हुण π/2 कितना है 3.14/2, ये वैल्यू एक तो वड्डी है, और साइन किसी भी एंगल का एक तो वड्डा तो हो नहीं सकता, और अगर आपां इत्थे मान लो पॉजिटिव वैल्यू पाने तो आ न्यूमीनेटर तो होर वध जाना, तो ये वाली वैल्यू एक तो वध जानी है। अगर नैगेटिव पाने, चलो समझाई गल, मैं की समझाया, 0 पुट करांगे तां भी आ नंबर एक तो वड्डा है, तो 1 2 3 पुट करांगे तो एक तो वड्डा होएगा। अच्छा अगर माइनस पुट करो, कितना आ गया -4 प्लस दैट इज -3/2। ठीक है, तो अगेन वो होर ऊपर नेगेटिव अगे आ जाएगा, बट आ नंबर -1 तो होर छोटा हो जाएगा, मतलब आ वाली वैल्यू 1 और -1 दे विच लाए नहीं कर रही, देयरफॉर इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, सो देयरफॉर आही आंसर है। ठीक है, गल समझ, चंगा सवाल सी, मतलब ये नहीं करना कि फटाफट के भाई ठीक है थीटा आ करके फिर एक्स स्क्वायर लैके, रेंज भी देखो ना, साइन थीटा हमेशा 1 -1 च लाइक करता है। ठीक है, सो दैट वाज गुड प्रॉब्लम, एडवांस का अगे चलते हैं। अच्छा जी, कहता है की कहता जी g(x) है 1 प्लस, अच्छा x माइनस इंटीजर x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, एंड यू नो ऑलरेडी, ठीक है, आई होप यू नो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 दे विच लाइक करता है। अगर मैं 1 ऐड करदा, ठीक है, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में जिहड़ा g(x) है वो मतलब 1 तो वड्डा है तो 2 तो छोटा है, g दी आपां रेंज ही कढ ली। ठीक है, अच्छा हुण की चाहता f ऑफ g, तो f ऑफ g की होएगा,
एफ ऑफ जी कहता -1 होएगा, तो मैं दसिया सी ना जिथे जिथे जी है, जिथे ते सॉरी एक्स है उत्थे उत्थे जी रख दो। सो एफ ऑफ जी की होएगा, इल कैन बी -1 इफ जी एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। इल बी 0 इफ जी एक्स इज इक्वल टू 0, इल बी 1 इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दसिया सी ना कि एफ के अंदर जी पाया जिथे ते एक्स है उत्थे जी रख दो, इधर तो है ही नहीं गा, इत्थे हुंदा इत्थे भी रख दो, ठीक है। सो एफ ऑफ जी हो गया आ वाला। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫॉर एवरी रियल एक्स, जी हमेशा 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ एफ ऑफ जी ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ जी ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ जी एक्स ਆ ਤੁਹਾਡੇ का एफ जी हमेशा 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। और होएगा पता किदा इनडायरेक्टली की हो रहा है एफ ऑफ जी, ठीक है। ਤੁਸੀਂ जी की है आ वाला नंबर, ਤੁਸੀਂ कुछ भी एक्स रियल पुट करोगे जी के अंदर, जी का आंसर आएगा आ वाला आंसर आएगा जी का एक्स पुट करने के बाद, ये हमेशा 1 तो लैके 2 दे विच आएगा। सो हुण एफ के अंदर जिहड़ा नंबर जाएगा वो या 1 है 1 तो वड्डा है, तो बेसिकली 0 तो वड्डे नंबर जाएगा, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है पुत्र। दूजा तरीका हो गया समझने का। सो अभी एडवांस का ही है क्वेश्चन, पुराना कहते साइन एक्स इज द फंक्शन एफ एक्स and gx is log mod x, ठीक है, natural log mod x. If the ranges of the composition of FOG GF are R1 R2, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब वो FOG ਤੇ GF ਦੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ f of g ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ f of g ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, x ਦੇ ਅੰਦਰ g ਰੱਖੋ, that is sin of log of mod x। ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਖਿਸਕਾ ਕੇ, ਅਗੇਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਫॉर ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ log mod x, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ log ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ log x ਦਾ 1, ठीक है। एक्स की जगह मॉड एक्स रखना की होंगे ईवन बन जाता, जिमें इधर उमें इधर आ जाएगा, ठीक है, आ बन गया इधर, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। सो एक्स की रियल वैल्यू पावांगे, ठीक है, 0 तो डोमेन च नहीं है, उन्हें डोमेन पूछी नहीं है तो मैं जिक्र नहीं किया। सो जब भी आ वैल्यू पावांगे, इसका आंसर नाल मतलब है, साढ़े आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा हमेशा -इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी। सो इसका मतलब साइन के अंदर इन्हों असीं कैपिटल एक्स मान लीए। सो साइन के अंदर जी नंबर जा रहा है, ठीक है, की जा रहा है -इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और साइन के अंदर जब -इनफिनिटी टू इनफिनिटी नंबर जाएगा तो उसकी रेंज कितनी आएगी, यदी आएगी -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 आएगी। इज दैट क्लियर, क्लोज, ठीक है, क्लोज भी आएगी, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा। सो यदी तो रेंज आ गई FOG की -1 to 1। सो मोर ओवर इन्हां च इक्को ही ऑप्शन सीगा आ वाला जिहदे -1 to 1 क्लोज है, तो इत्थों इहनूं कड्ढण दी लोड़ ही नहीं है। बट असीं हुण किहड़ा पेपर करने, आपां तां सिੱਖਣ दए, तो हो सकदा ना कल नूं दूजा सवाल पुछ ले, तो हुण आपां सैकेंड दी रेंज कढदे। बेटे गल समझ आ गई, ऑप्शन मैनूं आंसर पता लग चुकिया क्या ही है। नैक्सट क्वेश्चन की है GOF, हाँ जी GOF की होगा, G of fx, G के अंदर x की जगह fx log of mod of sin x, ठीक है। सो देयरफॉर की करिए, आपां log के अंदर साइन नूं इत्थे लिख लिया, साइन mod x, साइन x mod, सॉरी। सो आपां हुण देखना है कि अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लो साइन mod का, तुहानूं पता है साइन x का ग्राफ है, ठीक है। वैसे तुसीं मेरे नालों फास्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ समझाउण खातर स्लो चलने, ठीक है। मॉड ना की होएगा, 0 है, पाई है, 2 पाई, सो मॉड ना होएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और आ वाली वैल्यू 1 है, समझे गल बेटे। सो हुण आपां की करना है कि एक्स दियां रियल वैल्यू पुट करांगे जद इत्थे, तो इहदी रेंज की आएगी, इहदी रेंज आएगी 0 to 1, बट 0 तो इनू चाहिए ही नहीं क्योंकि log 0 तो डिफाइंड नहीं है। सो किहड़ियां किहड़ियां वैलिड वैल्यू चलदियां 0 छड्ड के 1 तक,
वो डोमेन च आ जाएगा ना भी आप वाले 0 पॉइंट लेने ही नहीं है, वो वाले x ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ 0 कर दो लवांगे नहीं। ठीक है, सो देयरफॉर एडमिसिबल वैल्यूज रेंज ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ 0 क्लोज 0 ओपन 1 क्लोज। सो देयरफॉर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कैपिटल X ਮੰਨਿਆ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਏਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 तक। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, मॉड साइन एक्स की रेंज भावें 0 to 1 है क्लोज, बट आप डोमेन भी वेखनी है ना कि वैल्यू अंदर अलाउड है, अंदर 0 तो चाहिए नहीं है ना, नैगेटिव नंबर चाहिए, नैगेटिव तो रेंज आ ही नहीं रहा, 0 आ रहा है वो छड़ देंगे। सो बाकी 0 to 1। सो इसका मतलब हो गया कि ये अंदर लॉग एक्स का ग्राफ दिखांगे, फिर एक्स कितने लाइक करता है ओपन 0 to 1 क्लोज। हुण आपां इहदे ते आ जी, क्योंकि जी ऑफ एफ तो आही है ना पुत्र। हुण लॉग एक्स का ग्राफ बना लो। ठीक है, आ लॉग एक्स का ग्राफ आ गया इत्थों लैके तक। आ कैपिटल एक्स है, आ वाला कैपिटल एक्स की है 0 नहीं पाना, नहीं पाते कोई गल नहीं, कि तक जाना 1 तक, 1 पाना है तो 0 नहीं पावांगे, फाइन 0 तो डिफाइंड नहीं है, गां जावांगे तो वैल्यू 1 पुट करे तो 0 है। सो ठीक है, सो रेंज की आ रही है दी 0 आएगी तो नीचे तक जाएगी, सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज आएगी। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज आ R2 आ गई, ये तो आंसर आ गया। ठीक है पुत्र, सो अगे जी कहता है कि एफ ऑफ जी दिता है तो जी ऑफ एफ दिता है। ठीक है, एफ जी पता जी एफ, तो एफ तो जी इंडिविजुअली लभने, तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो पहला, एफ एक्स इज साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, मतलब तो पता लग जाएगा ना कि कॉम्बीनेशन है। ठीक है, जिद ये आ रहा है तो जी एक्स कितना अंडर रूट एक्स। So let us calculate f of gx, that is sin square, जिथे ते x है उत्थे उत्थे अंडर रूट एक्स रख दो। तो let us calculate g of fx, g दे अंदर जिथे ते x है उत्थे f पा दो। सो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, एंड अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर इज साइन एक्स के मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। सो आई गेस यही मैच कर गया पहले, g of f इज मॉड साइन एक्स एंड fo is g is that is nothing but sin under root x का होल स्क्वायर, वही चीज़ लिखी हुई। ठीक है, सो इससे कोई बहुता हैडिक सीगी नहीं। ओके, आ 15 एडवांस का क्वेश्चन है। अच्छा, हालांकि मैं तुम्हें कहना जिद्दां रेंज की गल होंदी है, मैं थ्योरी जब पढ़ा रहा से उत्थे भी मैं दस्सिया जी तुहानूं कि रेंज आप प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव के बाद पूरा सिखांगे, क्योंकि रेंज बेसिकली की है कि भी जी मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू रेंज होंदी है। कई बार जनरली फंक्शन पढ़ाते टीचर, बट क्योंकि तुम इनक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ ही लिया तो उत्थों रेंज कढ़नी आसान है। ठीक है, सो इस करके फंक्शन मैं रेंज नहीं पढ़ानी, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ानी। तो जी हुण रेंज पढ़ाई है वो जड़ियाँ चीज़ां हो रही हैं वो करातियाँ, जिवें ग्राफ के नाल किवें कढ़ना है, हल्का फुल्का जो सवाल वो दसते। अच्छा, आ एक एफ एक्स दिता है तो एक उन्हें आ जी एक्स देता, जी एक्स कितना है π/2 इंटू साइन एक्स, इतने मैं लिखदा। ठीक है, π/2 इंटू साइन एक्स, वेट अ सेकेंड इतने। ठीक है, अच्छा हुण की चाहते हो, लेट एफ ओ जी डिनोट दिस, वो तो ठीक है। रेंज ऑफ एफ, तो पहला एफ की रेंज करनी है, चलो ठीक है, एफ एक्स लिख लीए कि साइन ऑफ π/6 इंटू साइन ऑफ π/2 इंटू साइन एक्स। तो रेंज लिखी दसिया सी मैं कि अंदरों शुरू करो, डोमेन च तेनों प्रॉब्लम ही कोई नहीं है कि इत्थे एक्स जो मर्जी पुट करो, साइन एक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, यदा जो भी आंसर आएगा वह साइन भी ऑलरेडी डिफाइंड है। तीन फंक्शन है ना, साइन साइन तो साइन, तिने ऑल रियल तो डिफाइंड है, तो मतलब डोमेन तो ऑल रियल है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, सो रेंज लिए मैं दसिया सी अंदरों शुरू करो। सो पहला की करिए इस फंक्शन ते आ जाओ, इनू थले थोड़ा जिहा खिसका लें। ठीक है, किहड़ा इत्थे π/2 साइन एक्स, इनू नीचे लै जाओ। ठीक है, लेट मी जस्ट डू इट प्रॉपरली सो दैट तुहानूं समझ आए। ठीक है, सो इत्थे π/2 इंटू साइन एक्स, ਇਹਦਾ आंसर है जाएगा ਇਹਦੇ। सो ਹੁਣ ਇਹਦੀ रेंज करते हैं, तो सानू पता ही है स्टैंडर्ड के साइन एक्स जोड़ा है दैट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। इस ग्राफ बनाने की लोड़ नहीं ना, ऑलरेडी नो दैट π/2 ना मल्टीप्लाई कर दो, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो π/2 साइन एक्स, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पाएगा, ये आ गया।
सो मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ -π/2 ਟੂ π/2 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ -π/2 ਟੂ π/2 ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਏ तो ਹੁਣ ਆ सवाल बन गया एक ही लिखा है π/6 साइन ऑफ कैपिटल एक्स ठीक है वेयर कैपिटल एक्स इज लाइंग इन दिस ਹੁਣ फिर ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ फिर ਇਹਨੂੰ नीचे करके ਜ਼ਰੂਰੀ मैं बार बार कहना ਇਹ मैं वैसे क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ मैं समझा रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ क्योंकि वो ये अंदर जाएगा हम यदी रेंज कर ली कैपिटल एक्स कितना है कितों लाई करते हैं -π/2 हम थोड़ा ग्राफ बना लो स्टिल यू नो कि -π/2 दी वैल्यू -1 और 1 के लाई करेगी आ साइन कैपिटल एक्स ठीक है π/2 ते वैल्यू 1 ठीक है -π/2 ते वैल्यू -1 तो इत्थों लैके इत्थों तक जब एक्स ये लाई करेगा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है पुत्र साइन का ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ that will be lying between what 1 and -1 ठीक है समझे गल। सो हुण मैं की करा I know that this sin x is lying between हाँ जी 1 and -1 this is capital X सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ π/6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ t ठीक है ਆ ਵਾਲਾ तो t ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਈ ਹੈ t ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ -π/6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/6 ठीक है। सो हुण आपां नूं चाहीदी है समझ गल आई होप आ क्लीयर है। सो आपां नूं हुण रेंज चाहीदी है साइन ऑफ टी दी वे टी लाइज बिटवीन दिस ठीक है हुण फिर साइन दे ग्राफ ते आ जाओ दिस साइन टी दा ग्राफ ठीक है साइन टी टी एक्स इज वे टी लाई बिटवीन π/6 इत्थे π/2 इत्थे किते π/6 होएगा ठीक है इत्थे -π/2 इत्थे -π/6 यू नो के माइनस हाफ टू हाफ आ रही है बट लेट मी डू अगेन π/6 ते वैल्यू साइन दी हाफ -π/6 ਤੇ -ਹਾਫ ਸੋ ਜਦ t -π/6 ਤੋਂ π/6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 क्लोज सो आंसर आ गया साਡਾ ठीक है। सो चलो ये हो गया दूजा अगे पार्ट रेंज ऑफ FOG f of gx अच्छा घट सी एक होर ऐड करते हैं f of gx इज साइन ऑफ मतलब f के अंदर जिथे तो x है इतने g रख देना साइन ऑफ π/6 अच्छा इन्हू मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक करूँगा हम ठीक है क्योंकि तुम ऑलरेडी कहानी समझ चुके हो साइन ऑफ π/2 कम ऑन साइन ऑफ x की रखे आप π/2 साइन x ठीक है इन्हू हम आप थोड़ा जहा स्पीड ही करते हैं अच्छा वंस अगेन इतों शुरू होइए π/2 साइन x कितने लाई करेगा -1 to 1 ठीक है तो इनू π/2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो ये किच लाई करेगा -π/2 तो लैके π/2 ठीक है। सो इनू करता खत्म सो ਇਹਦਾ आंसर किच जाएगा फिर साइन के अंदर समझ आ रही गल नहीं आ रही तो पिछला फिर वेखो ये इत्थे जाएगा हुण जब x -π/2 तो π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ है ਇਹਦਾ साइन कित्थे लाई करेगा -1 to 1 सो देयरफॉर आ वाली वैल्यू साइन दी किच लाई कर दी है -1 to 1 इनू कितना मल्टीप्लाई किया π/2 ना तो ਇਹਦਾ मतलब इस पूरे फंक्शन का आंसर फिर की आया -π/2 to π/2 ठीक है समझ आई गल इनू फिर डाला जो नहीं समझ आ रहा तो जस्ट रिवाइंड इट एंड वॉच सो ਇਹਦਾ आंसर कैपिटल एक्स का हाँ जी कित्थे आ रहा कैपिटल एक्स बिलोंग करता है -π/2 to π/2 हुण जब कैपिटल एक्स -π/2 बिलोंग करेगा फिर साइन एक्स का आंसर फिर कित्थे आएगा -1 to 1 तो ਇਹਦਾ आंसर आया -1 to 1 बट ये कितना मल्टीप्लाई होया π/6 ना तो इन पूरे ना मल्टीप्लाई करेंगे यदी रेंज कित्थे आएगी -π/6 to π/6 इस पूरे फंक्शन की ठीक है यदी रेंज आ गई -π/6 to π/6 तो इनू मैं टी मानना देयरफॉर साइन ऑफ टी की रेंज चाहिए है वे टी बिलोंग टू
माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ sin t ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾइनस हाफ टू हाफ therefore range of f of g is also this ठीक है सो आई गेस आ भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है तीजा limit fx by gx so sin of pi by 6 and sin of pi by 2 sin x ठीक है डिवाइड बाय g कितना पुत्र pi by 2 into sin x x approaches 0 हाँ जी पहला तो फॉर्म चेक करी दी लिमिट x approaches 0 आ 0 sin 0 0 फिर इत्थे 0 ते 0 आंसर आ रहा और तुहानूं मैं की समझाया सी कि आ हुण नंबर अंदर वाला 0 नूं जा रहा ते अंदर वाला नंबर जो 0 जा रहा है तो साइन ऑफ कैपिटल एक्स बाय एक्स टाइप है आ भी 0 जा रहा है तो ये नाल ही डिवाइड कर दो तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो की करिए आ सानू पता नंबर 0 नूं अप्रोच कर रहा है तो इनू ये नाल ही डिवाइड कर दो तो ये नाल ही मल्टीप्लाई कर दिए बिकॉज साइन ऑफ एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 आंसर 1 आ जाएगा ठीक है सो हुण एवें करते हैं पाई बाय 2 साइन एक्स है ना इनू घड़ीस के इत्थे लिख लैंदे आ ठीक है पाई बाय 2 साइन एक्स और आ वाला इत्थे डिवाइड करता ठीक है हाँ जी ये नाल ही मल्टीप्लाई करता कि पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स इन्नी गल समझाई एंड वैन एक्स अप्रोचेज 0 दिस इज साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स टाइप एदा आंसर 1 आ गया सो आ तुहाडे को 1 आ गया इनू बॉदर ना करो मतलब पूरी लिमिट का आंसर फिर इत्थे आ जाओ वैन एक्स अप्रोचेज 0 अगेन साइन 0 0 आ 0 जा रहा तो अगेन साइन एक्स टाइप हो गया तो की करिए ये नाल डिवाइड कर दिए एंड मोर ओवर पे आइए क्यों आप इनू करने आ इत्थे पाई बाय 2 साइन एक्स तो नीचे पे सो आ भी 0 जा रहा आ भी 0 जा रहा सेम भी है फंक्शन सो साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स टाइप हो गया एक्स अप्रोचेज 0 ਇਹਦਾ आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है तो की रह गया फिर पाई बाय 6 रह गया सो दैट इज 1 इंटू पाई बाय 6 1 है दी लिमिट पाई बाय 6 आते 1 आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 ठीक है सारी ट्रू कराने ऑप्शन एक रह गया होर चलो वेख लेने सो नैक्सट क्वेश्चन कहता है कि जी ऑफ एफ हाँ जी कितना होगा जी के अंदर इत्थे इत्थे एफ एक्स पा दिए पाई बाय 2 साइन ऑफ एफ एक्स की आ वाली चीज़ साइन ऑफ या मैं एवं करन एफ एक्स ही रहना आई डोंट नीड दिस थिंग क्योंकि मैनू इक्वेशन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे अच्छा हुण कहंदा कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 एक्स लभने तो जी ऑफ एफ कढ़ लिया ठीक है तो जी के अंदर इत्थे एफ पुट करता उन्होंने 1 तो देयरफॉर मैं की चाहना है कि साइन ऑफ एफ एक्स जिहड़ा आ वाला नंबर बेटे मैं इधर लै जा 2 बाय पाई होवे ठीक है सो जे कोई एक्स इहो जिहा आ गया कि ਇਹਦੀ वैल्यू जी 2 बाय पाई के बराबर आ जाए तो आ गया गल खत्म और सानू इन्ना पता बेटे जिहड़ा एफ एक्स आ ਇਹਦੀ रेंज कित्थे है माइनस हाफ टू हाफ ये थोड़ा समझने वाला सवाल है हुण देखो सानू पता जिहड़ा आ वाला एफ है पुत्र ये बिलोंग करता है माइनस हाफ टू हाफ और आ वाला जो नंबर है 2 बाय 3 टाइप है ना इदा की वैल्यू आप देखना कि की कदी इन्ना हो सकता है आ वेखो साइन का ग्राफ ठीक है हुण एक मिनट समझ के चलो आ वाली वैल्यू पाई बाय 6 है ठीक है आ वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 6 है पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होंगी है हाफ आई टेल यू वाई मैं पाई बाय 6 क्यों चूज किया आ वैल्यू हाफ है माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस हाफ हुण जिहड़ा आ वाला इंटरवल देखो पाई बाय 6 ते हाफ नू कंपेयर करो 1 बाय 2 तो 3 ना मल्टीप्लाई एदे डिवाइड तो पाई वड्डा है जिहड़ा पाई बाय 6 है हाफ तो वड्डा है तो जिहड़ा हाफ ते माइनस हाफ है ना पुत्र वो एदे विच विचाले किते लाई कर देता सबसैट है ठीक है हुण सानू पता है कि पाई बाय 6 तो लैके माइनस पाई बाय 6 तक वैल्यू एक्स की पुट करांगे साडा जिहड़ा इहदा साइन का आंसर आएगा वो माइनस हाफ तो हाफ दे विच ही आएगा और आ नंबर सर्टनली हाफ तो वड्डा है
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ f ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ -ਹਾਫ ਔਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਤੋਂ -ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਦ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਤਰ -ਹਾਫ ਔਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂ ਪੁੱਟ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋल्यूशन नहीं है। देयर इज एन x बिलोंग्स टू दिस, सो नो, आ नहीं। ठीक है, सो सर्टनली मल्टीपल चॉइस एट द टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम सीगा पुत्र। ठीक है, पर ਇਹਦੇ कई चीज़ां सिखाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, तो ਇੰਨੀ ਗੱਲ समझ आ गई? तो बस ठीक है, आई गैस दैट्स इट। सो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। तो डोमेन रेंज करनी पिछली क्लास जो समझाया, अज की क्लास में प्रैक्टिस करो। एक चीज़ यदि छोटी जी होर मैं दसूँगा, कंपोजिट फंक्शन कढ़ना जब पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड होंगे। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, फिर थोड़ा अगे नैक्सट पार्ट पर चलांगे। ओके पुत्र।